Hello and a very warm welcome to all of you. I'm Neha Bharadwaj Alter and this is Game On. This is where you get the latest from the world of sports, and there's a big international tournament that will begin tomorrow, and we've decided to start our show with that tournament because we have a very, very special guest in the house. We'll just introduce him, but before that, FIH Pro League is one of the big ticket tournaments in the international hockey calendar, and there's a lot riding on this tournament. The winners will get a direct entry into the 2026 World Cup. The FIH Pro League, they invite 9 of the best teams from around the world to compete. The Indian men's hockey team, they begin their campaign against Spain on 15th of February at the Kalinga Stadium in Bhubaneswar. They will be playing 2 matches each against Spain, Germany, Ireland and England in their home leg at the Kalinga Hockey Stadium. Now, it follows the Sydney leg, which took place from the 4th to the 9th of Feb. The team currently ranked 5th in the world. They will tour Europe in June while they take on Netherlands and Argentina in Amsterdam. And the Antwerp leg will see them go up against Australia and Belgium. Now, India's best ever performance in the 6-season-old league was in the 2021-22 edition, where they ended 3rd on the points table. With a spot in the FIH World Cup 2026 on the line, coach Craig Fulton, his side would want to go full throttle and look to lift their first title. They have named a 32-member squad for the tournament with Hardik Singh as the vice-captain, Harmanpreet Singh is the captain. India will open their FIH Pro League campaign against Spain on Saturday. They will next play Spain, which is back-to-back 2 days, followed by matches against Germany on 16th and 19th in the opening leg of this India tour. Now, Harmanpreet Singh, 2-time Olympic medalist, Asian Games gold medalist, 3-time FIH Player of the Year, and now a Khel Ratna winner. He is one of the only 6 hockey players to have got the highest honor that one can receive in the field of sports. Harmanpreet Singh joins us. In fact, Harman, congratulations. Let me see Harmanpreet, please. Thank you so much for taking the time out, Harman. बहुत congratulations आपको, क्योंकि खेल रत्न अभी मिला है, हाईएस्ट ऑनर। 2023 वर्ल्ड कप की निराशा से अगर आप देखें तो वहाँ से और दुनिया के सबसे अच्छे ड्रैग फ्लिकर्स बनने का जो सफ़र रहा, फिर पेरिस में मेडल जीता, अब खेल रत्न मिला है, कैसे देखते हो आप इस सफ़र को? काफी अच्छा रहा है सफर। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, एंड 23 का वर्ल्ड कप था जो ऐसा मेरी लाइफ में आया है, बट वहीं से हम सीखते हैं। आई थिंक वो पास्ट है, बट वहाँ से आप क्या सीख के आप आगे बढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एंड जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, एंड ऑफ कोर्स जो अवार्ड मिला है बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड जो सारा क्रेडिट है मेरी टीम को जाता है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। What was it like though? कैसा था वो मोमेंट मुझे डिस्क्राइब करके बताइए। जब आप आप अवार्ड ले रहे थे, तो ये कहते हैं ना कि कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग, आपने इतना जो भी हार्डवर्क आपने किया है, ऐसा लगता है कि वेस्ट नहीं गया, इट्स पेड ऑफ। नहीं, काफ़ी स्पेशल रहता है ऑफ कोर्स। वो बताने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट वो ऐसी एक मोमेंट थी जो मेरे को लाइफ टाइम मेरे याद में रहेगी। वो मेरी स्पेशल मोमेंट रहेगी वो मेरे लिए। बहुत प्राउड थे, मेरी फैमिली मेरे साथ थी वहाँ पे। सो उनके सामने वो अवार्ड रिसीव करना, एंड और सारों इतने बड़े एथलीट्स हैं हमारे इंडिया के, उनके साथ अवार्ड्स रिसीव करना उनके सामने मेरे लिए बहुत स्पेशल था वो। कहते हैं एफआईएच प्रो लीग की, और जो जो टीम्स हैं अब इसमें, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सो इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक और चीज़ जो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है इसमें, मैं जो देख रही थी कि आप 8 मैचेस खेल रहे हैं 10 दिन में, तो टीम की स्ट्रैटेजी बनाना, किस टीम को कैसे आप खेलेंगे, कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसे? आई थिंक जो प्लानिंग है वो सेम है, जो हम अ, बड़े टूर्नामेंट में जो हमारा स्ट्रक्चर है हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, बट उसमें क्या और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली वो हर एक मैच के बाद, हर एक टूर्नामेंट के बाद हमें सीखने को मिलता है। तो बेसिकली ये टफ रहने वाला है। ऑफ कोर्स इतने कम समय में इतने ज़्यादा मैचेस हैं,
बट बैक टू बैक मैचेस हैं। बट एक चीज़ अच्छी है कि जो बस आप टीम के साथ खेलोगे एंड आपके पास स्टिल नेक्स्ट डे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपने क्या अच्छा किया है और कहाँ पे आप और उनको हर्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। बट प्लेयर सभी फिट हैं, रिसेंटली हॉकी इंडिया लीग से वापस आ रहे हैं, सभी प्लेयर फिट हैं, हॉकी के साथ टच में थे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी टीम की। चलिए, हॉकी इंडिया लीग की आप बात कर रहे हैं, 7 साल बाद वापस आया, कितने चेंजेस आपने लीग में देखे? और एक जो मैंने जितने लोगों से बात करी है, क्योंकि यहाँ पे नेहा भी आई थी WHL के बारे में, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि जो फॉरेन कोचेस आए हुए हैं उनके साथ और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो। एक जो कहते हैं कि, एंड आई एम श्योर आपको भी ये बात फॉरेन कोचेस भी कहते होंगे कि भाई फिटनेस में, स्किल में प्रॉब्लम नहीं है, कई बार स्ट्रैटेजी में पीछे रह जाते हैं हम लोग। तो उसके बारे में बताइए कि वो कितना डिफरेंट था। ऑफ कोर्स हर एक कोच का डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट प्लानिंग होती है, कैसे वो प्लेयर को एंगेज कर रहा है अपनी टीम के साथ। बट एक चैलेंज भी रहता है क्योंकि वो सेम टीम नहीं है जिसके साथ आप खेलते आ रहे हो, एंड सडनली आपका न्यू प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर हैं, उनके साथ आपने सब कुछ शेयर करना है, अपने ग्राउंड शेयर करनी है, रूम शेयर करने हैं, सो काफ़ी डिफरेंट रहता है। बट ऑफ कोर्स जो फिटनेस भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ ऑफ कोर्स जो प्लानिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बट आई थिंक जो हमारे कोच हैं क्रेग फुलटन, आई थिंक वो बेस्ट कोच हैं, और जैसे वो हमें समझा रहे हैं, जैसे हम जो हमें बताया जा रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं, आई थिंक उससे उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है, काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि जो वो बताते आ रहे हैं उस पर हम स्टिक रहेंगे और उसमें अच्छा करते रहेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे। बट हर एक कोच की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है जो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे तो कान वो में बोला जा रहा है कि, हाँ, मुझे कान में बोला जा रहा है कि यू हैव टू गो, बट आई कैन नॉट लेट यू गो विदाउट आस्किंग वन मोर क्वेश्चन, और मैं पूछ के रहूँगी क्योंकि वो मैच मैंने देखा और करोड़ों इंडियंस ने देखा। मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगी पेरिस ओलंपिक्स में, और वो ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच, मुझे पता है बहुत लोगों ने आपसे उस पर सवाल किया है, बट आप अपने उससे मुझे बताइए कि किया कैसे आप लोगों ने। 47 मिनट बचे हैं मैच में, 1-1 में आप ब्रिटेन को अपने गोल पोस्ट से दूर रख रहे हैं, पेनल्टी शूट आउट फिर होता है जो शूट आउट, उसमें आप जीत रहे हैं। प्लीज टेल मी कैसे किया। आई थिंक वो माइंडसेट होता है, काफी कुछ सीखा है, ऐसा नहीं कि रिसेंटली हमने एक मैच में अच्छा कर दिया, बट इसके पीछे पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है हमारा, और जो हम ट्रेनिंग करते रहे हैं, जो हमने मैचेस में सीखा है कि अगर वन मैन डाउन है तो आपने कैसे रहना है, जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर की बात की, प्लानिंग की बात की, एंड फिटनेस भी थी, माइंडसेट भी बिल्कुल पूरा स्ट्रांग था हमारा, एंड उसके साथ साथ जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था वो बहुत स्ट्रांग था, तो एक बिलीव था कि हम बीट कर सकते हैं। तो कार्ड के बाद आई थिंक जो एनर्जी लेवल था प्लेयरों का, जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया। सो आई थिंक वो एक रीजन है, बट नेवर गिव अप वाली मेंटेलिटी थी कि टिल द लास्ट विसल हमने फाइट की है, एंड शूट आउट पे मैच गया है, तो शूट आउट पे सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं काफी स्किलफुल हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे गोलकीपर अच्छे थे। तो आई थिंक वो उस दिन हमारा दिन था, बट उसके पीछे हमने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, सो दैट्स वाई जो रिजल्ट था वो हमारे फेवर में रहा है। और गोलकीपर जो ब्रिटेन के गोलकीपर थे वो भी कुछ ना कुछ आपको, मतलब वो अपनी तरह से स्लेजिंग कर रहे थे। जी नहीं नहीं, आई थिंक मैच में काफ़ी कुछ चीज़ें होती रहती हैं, बट आपने उस समय आई थिंक आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपने अपना काम रहना है, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती हैं, और गोल करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जो आपने साइन किया वो भी मुझे याद है, बट thank you so much, Harmanpreet, for joining us, and we wish you all the very best. This is an important थैंक यू। league and it's going to be a challenging league. पर जैसा कि आप लोगों ने पहले भी करके दिखाया, that when there is challenges that are thrown at you, you come up better and stronger. So thank you so much once again. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग। Okay, so from the men's league to the women's pro league as well. How can we not talk about that? India's women's hockey team, they will look to give an improved performance when the Bhubaneswar leg of the FIH Pro League commences on Saturday, and they will not be pulled back by their disastrous showing in the previous season. India will open their campaign against England at the Kalinga Hockey Stadium, hoping to erase the memories of an 8th place finish last season where they ended up only ahead
of the United States. The other teams in the fray are Germany, Spain, and world number 1 Netherlands. India scored only 16 goals last season in comparison to champions Netherlands, who smashed a mind-boggling 63 goals. The country is currently ranked 9th in the world, while powerhouse Germany are 4th, England are 7th, and Spain are 8th. India will begin their campaign with 2 matches against England on 15th and 16th of February, followed by clashes against Spain on 18th and 19th of February. And the side will also face challenging opponents in Germany and world number 1 Netherlands. That's on 21st and 22nd, and then 24th and 25th respectively. India clinched their 3rd Asian Champions Trophy title, beating China at home in November last year, giving them the boost they needed after missing out on a Paris Olympics berth. With a blend of experienced players like Savita, Sushila Chanu, Nikki Pradhan, Vandana Kataria, Udita, Lal Remsiami and Sharmila Devi, alongside youngsters like Deepika, Sunilita Topu and Jyoti in the ranks, India have a well-balanced squad. And now joining me is Udita, who's been an integral part of this Indian women's team. She was part of the team that finished 4th in Tokyo Olympics, 2-time, or in fact 2 Asian Games medal, 1 Commonwealth Games medal. Udita, congratulations to you, क्योंकि आपको और मुझे हरमनप्रीत को भी बताना चाहिए था, but you guys were the highest paid players in Hockey India League, and you being in the women's league first edition, उससे पता चलता है your skill, you know, the value of your talent, what you've done, and also that hard work pays off. Thank you so much for that. And yes, आपने सही कहा कि hard work जब, क्योंकि एक एथलीट मुझे लगता है जब वो स्टार्ट करता है कोई भी प्रोफेशन किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उसकी वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है हार्ड वर्क की। और ये मैं कह सकती हूँ कि जो वुमेन्स हॉकी लीग जो हॉकी इंडिया ने स्टार्ट किया है, मेंस का पहले भी हुआ है बट उनका काफी टाइम लग गया दोबारा स्टार्ट करने के लिए, बट विमेंस का फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। तो वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी कि फाइनली हम लोग लाइक एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको भी शो ऑफ करने के, अपने टैलेंट दिखाने का, या एक नया जरिया मिल गया है कि अपनी जगह बनाने का इंडियन टीम में। तो इट्स अ गुड। थोड़ा और पूछना चाहूँगी मैं हॉकी इंडिया लीग के लिए, क्योंकि जैसे मैं अभी बता रही थी हरमन को भी कि नेहा से हमारी बात हुई थी आफ्टर दे वन द टाइटल दिस सीजन। तो बहुत सारी बातें इस चीज़ पे हुई कि वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप जैसे कोचेज़ आपके फॉरेन कोचेज़ होते हैं, आप ग्लेन टर्नर के साथ आप वो आपकी टीम के कोच थे। तो टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ, हाउ इट हेल्प्स यू ग्रो एज अ प्लेयर। ऑफ कोर्स मैम, ये मैं कह सकती हूँ कि एज अ इंडिविजुअल प्लेयर्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग फॉरनर्स के बेस्ट प्लेयर्स के साथ हम लोग वहाँ पे साथ में ही एवरीथिंग शेयर कर रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड साथ में शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि वो लोग अपना माइंडसेट कैसे बनाते हैं अगेंस्ट गुड टीम्स, और आप हर एक मैच को मैच बाय मैच कैसे लेके चलते हैं, एंड क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं, कैसे आप लोग जो भी कठिनाई आती है उनको पार करने की सोचते हो, क्या माइंडसेट रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो इंडिविजुअल जो ग्रोथ है HIL, उसके लिए बेस्ट स्टेज कह सकती हूँ मैं कि क्योंकि पर्सनली मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उनसे भी सीखी हैं, और शायद उन्होंने भी हमसे काफी चीजें सीखी होंगी। तो ये जो आदान प्रदान है सिखाने का हाँ। तो वो काफी अच्छा रहा है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि इससे पहले मुझे लगता है कि एज अ लाइक इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर, तो हमने कभी फॉरेनर्स को उस लाइक फ्रेंड्स उसमें देखा ही नहीं, हमेशा ओपोनेंट की तरह से ही उनको देखा है और ट्रीट किया है, एंड उन्होंने भी हमें ऐसे ही ट्रीट किया है। बट अभी HIL से हम लोग की फ्रेंडशिप्स भी बढ़ी हैं, फ्रेंड्स हुए हैं। सो वो जो गैप था वो थोड़ा सा कम हुआ है, नेक्स्ट टाइम और भी कम होगा मे बी। तो जो चीजें हैं हम एक दूसरे के साथ जो भी चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं खुले उसमें खुले दिल से। सो अच्छा, दैट्स गुड। ओके, तो अब FIH प्रो लीग की बात करते हैं। लास्ट टाइम इतना अच्छा नहीं रहा ऑफ कोर्स। अब आप
इसमें जाओगे तो आप यू ऑब्वियसली वांट टू डू बेटर. आपके कोच अब आपके साथ जो हैं हरिंदर सिंह, वो एक नए टाइप का, मतलब कहते हैं कि जो आप जैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो उसमें बहुत विश्वास रखते हैं. तो उनका रोल अभी तक कैसा रहा है? शायद उनको अब तक 10 महीने हो गए होंगे आप लोगों जी के साथ. तो वो कैसा अभी तक रहा है, उस पर मुझे बताइए कि वो प्रेपरेशन में, ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस आया है. काफी अच्छा रहा है मैम कि वो एक कोच भी बेहतरीन है और एक इंसान भी. तो काफी कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं कि मैं स्टार्टिंग से ये बोलते हूँ कि इंडियंस जो हैं वो जो बेसिक स्किल्स हैं उनके मास्टर्स होते हैं. तो ऑब्वियसली सर भी हमें वही चीजें सिखा रहे हैं. फॉरेनर्स का क्या है, वो लोग टेक्निकल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और हम लोग टेक्निकल और जो बेसिक स्किल्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. तो ऑफ कोर्स काफी चीजें चेंज हो रही हैं, बेसिक्स और अच्छे हो रहे हैं तो टाइम के साथ. एंड इवन बेस्ट कोच है हमारे साथ, तो उनके साथ हमारी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है. होप सो कि हम लोग इस प्रो लीग में काफी अच्छा, लास्ट टाइम से ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए. और ये बात मैं आपसे भी पूछूंगी कि बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ रहे हैं टॉप अपोनेंट्स के अगेंस्ट. नेदरलैंड्स है, उसमें जर्मनी है, उसको आप कैसे देखती हैं उस चैलेंज को? ऑफ कोर्स मैम, वो एक माइंडसेट है. और पूरी टीम ने वो माइंडसेट बना रखा है कि हम लोग 10 दिन में 8 मैचेस खेल रहे हैं. तो 11 दिन में 8 मैचेस खेल रहे हैं. तो वो करेक्ट. एक माइंडसेट बना हुआ है हमारा कि हर एक दिन को, हर एक मैच को उसी टाइम पे लेके जाना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है. तो वो एक पूरी टीम का एक ही पेज पे है पूरी टीम. तो इतनी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ज्यादा सोचा नहीं है, क्योंकि कोच ने सिर्फ यही बोला है कि आज हो तो आज का जियो, कल का हम बाद में सोचते हैं, नेक्स्ट डे सोचेंगे. तो वही चीज है, माइंडसेट पूरा है, तैयार है. ठीक है, that's a wonderful way to live. Live mindfully, live in the present moment. With that, Udita, I will say thank you to you, and all the very best for थैंक यू the Pro सो League. I मच. hope we do well. I'm cheering for you. थैंक यू, थैंक यू. Okay, we've got just a bit of time left, but we've got to give this news out to you. The International Cricket Council has announced a 53% hike in the Champions Trophy prize purse, raising the winner's check to 2.24 million American dollars, matching the amount that IPL 2025 champions will take home. Actually, half of that. The winner's purse will be equal to 20 crores in Indian currency. The runners-up will receive half that amount, $1.12 million. Each of the other two semi-finalists will take home 560,000 US dollars. The total prize pool for the Champions Trophy has been increased to 6.9 million US dollars, which amounts to approximately 60 crore Indian rupees. Each group stage win would be worth over $34,000 for the victorious team. Teams finishing in the 5th or the 6th place, they will receive 350,000 American dollars, while the 7th and the 8th place sides will take home 140,000 USD. Additionally, all 8 teams will receive a guaranteed $125,000 for participating in the event. This tournament marks the first time Pakistan will host an ICC event since 1996. India, though, will play all their matches in Dubai owing to security concerns related to travelling to Pakistan. Rohit Sharma's men will begin their campaign on 20th of February against Bangladesh in Dubai. The Pakistan leg will feature games in Karachi, Lahore and Rawalpindi. The 2025 edition features 8 teams split into 2 groups of 4, with the top 2 from each group advancing to the semi-finals. The Men's Champions Trophy was held every 4 years from 2009 to 2017 before a COVID disruption and deliberations on its relevance led to it being postponed. The tournament was first introduced as a biennial event in 1998. The Women's Champions Trophy will make its debut in 2027 in the T20 format. England coach Brendan McCullum has dismissed the claims that they didn't train adequately in the recently concluded ODI series against India. After the first ODI in Nagpur, England did not train in the second and the third match against India. Now, former Indian coach Ravi Shastri and former England captain Kevin Pietersen, they had slammed England for skipping training ahead of the second and the third ODIs. Now, McCullum said, and I quote, "Firstly, it is factually incorrect. The whole statement that we don't train, we've trained plenty right throughout, and guys have come from a lot of cricket as well. I think it's an easy thing to have
as a throwaway line that guys don't train enough when the results aren't right. He also spoke about the injury to Jacob Bethel. He said, we've got a style and a method that we believe in. We've got guys who are battling injuries and trying to make sure that we've got enough bodies out on the field, knowing that we've got a huge assignment coming up in a week or two. Ultimately, it's factually incorrect what is being said, and we will stay true to what we believe in. Now, England will be in UAE for a short break before beginning their Champions Trophy campaign against Australia in Lahore on the 22nd of February. With that, we've come to the end of this show. Goodbye. Thanks for watching.